Hello everyone, dear student. Welcome you all here. I am Ankita Singh, and as you all know that we have started statistics in last video. I have introduced you all with the first chapter of statistics of class 11th, and this is the second lecture of class 11th statistics. In the previous, we have started the chapter first of statistics, that is concept of economics and significance of statistics in economics. We had started this chapter and we have introduced some of the topics also. I introduce you all with the what is economics and some of the important terms of the economics and the statistics too, that is consumer. We had discussed about consumer, consumption, producer, production, saving, investment, and what is economic activity and economic problem. We had discussed about these topics in the previous lecture. Today, dear student, we are moving further in this chapter and we will see that what is next in this chapter that we have to consider in it. This is the first chapter of statistics, so it is very important. It is an introductory chapter also, which tells you about the important terms and important condition in the statistics. What is the statistics actually? We are going to know in this chapter what is economics and what is statistics. We will discuss in this chapter, so we will move further and see what is next. Dear student, as you all know that economics is divided into two sub-subject also. So one is the macroeconomics and another is microeconomics. MICRO, micro, and MACRO, macro. Micro and macro is the word which is taken by the Greek word. It means that micro, MICRO means small, ठीक है, टाइनी लिटिल थिंग्स, एंड MACRO, मैक्रो मतलब लार्ज एग्रीगेट थिंग्स. So these two subject we are going to study in commerce in first year. First year means 12th 11th class. In 12th, in 11th class we are going to study about the microeconomics. हम लोग 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको इंट्रोड्यूस कराया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ जो कि डील करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड. एक फर्म की बात होगी, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात, एक पर्सन की बात करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सिर्फ बात करेंगे. और मैक्रो मतलब MACRO, मैक्रो मतलब इकोनॉमिक इन अ होल, लार्ज की बात हो रही है, ठीक है, इकोनॉमी इन अ होल. यहाँ पूरे इकोनॉमी में सबकी बात हो रही है, पूरी जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 12th में पढ़ते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके क्लास 12th में होगी और इस बार हम लोग माइक्रो पढ़ेंगे. इसमें हम लोग ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि इंडिविजुअल स्टडी नहीं होगी, एग्रीगेट स्टडी होगी, मतलब कि होल की स्टडी, लार्ज डाटा की. एक पर्सन के डाटा की स्टडी नहीं करेंगे हम, पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे, लार्जली स्टडी करेंगे. सो ये डिफरेंस होता है माइक्रो और मैक्रो में. हमने इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस किया था. तो अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे. स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स को टू पोर्शन में देखा जाता है. स्टैटिस्टिक्स को एक सिंगुलर फॉर्म में भी देखा जाता है, सिंगुलर नाउन भी माना जाता है, प्लूरल सेंस में भी इसको देखा जाता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको सिंगुलर सेंस में किस तरह से इसको डिफाइन किया गया स्टैटिस्टिक्स को. So you can see that in a singular sense, statistics means science of statistics and statistical method. It refers to the technique or method related to collection, classification, presentation, analysis, interpretation and quantitative data. स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर सेंस में किस तरह से कंसीडर होती है उसके बारे में ऐसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाता है स्टैटिस्टिक्स को कि
एक स्टैटिकल डाटाज है, एक न्यूमेरिकल फैक्ट, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डाटा है जिसका कलेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालिस मतलब कि इसकी अच्छे से जांच होती है, इंटरप्रेट करना, ठीक है। ये सारा जो फंक्शन है वो स्टैटिस्टिक्स में आता है। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डाटा की, और उनको कलेक्ट करके उनको प्रेजेंट करता है, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा को। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ साइंस विच डील्स विद कलेक्शन क्लासिफिकेशन। कलेक्शन करना मतलब इकट्ठा करना, क्लासिफिकेशन मतलब उसको डिवाइड करना कि किस तरह का डाटा है ये, एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। इन्हीं डाटाज को जो डिवाइड किया हो उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करना है। जैसे कि आपने देखा होगा मैथ्स में जब आप मीन मीडियन मोड वगैरह ये सब करते हो, और भी बड़े बड़े जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो डिस्पर्शन वगैरह के, तो उसमें आपने देखा होगा वो टेबल फॉर्म में रहता है ना, न्यूमेरिकल्स डाटाज जो है ये टेबलर फॉर्म में होता है, उससे आप उसको उसको सॉल्व करते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले कलेक्ट करना, उसके बाद वो डाटास किस तरह के हैं उसमें क्लासीफाई करना, और उसके बाद उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और न्यूमेरिकल फैक्ट्स को इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उनको उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं इस फिनोमेना से। सो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन में किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगुलर नाउन में स्टैटिस्टिक्स को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। इसमें अलग अलग स्टेजेस है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकल डाटाज पे डील करता है। ये कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और इनका टैबुलेशन या प्रेजेंटेशन ही बोल सकते हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर टैबुलेशन सब कुछ आ जाता है, ठीक है, टैबुलेशन वगैरह प्रेजेंट करने का तरीका ही है टैबुलेशन। उसके बाद उसका एनालिसिस करना और इंटरप्रिएट करना। इंटरप्रिएटेशन मतलब रिजल्ट को आउट करना, ठीक है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना। तो यहाँ पे जो स्टेजेस है 5 स्टेजेस है। तो ये पूरा सिंगुलर नाउन के सेंस में कैसे वर्क करता है? कलेक्शन करना, फर्स्ट स्टेज में कलेक्ट करते हैं डाटाज को, अलग अलग जगह से डाटाज को लाके कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि 2010 में कितना प्रोडक्शन हुआ वीट का, उसका डाटाज कलेक्ट किया। 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ वीट का, उसका डाटा कलेक्ट किया। तो ये सारे डाटा का कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करना। जैसे कलेक्ट कर दिया तो उसको सिस्टमैटिक क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। जैसे फर्स्ट हमें 2010 का डाटा मिला तो हम 2010 को पहले लिखेंगे, फिर 2012 का डाटा तो उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज मैनर में एक एक सीक्वेंस में उसको अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना, रीअरेंज करना। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि उसको प्रेजेंट करना, जैसे टेबल के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में, हिस्टोग्राम में, ठीक है। हिस्टोग्राम भी एक प्रेजेंटेशन होता है, ओगिफ के फॉर्म में। ये सब आपने मैथ्स में किया होगा, हिस्टोग्राम बनाया होगा, पाई चार्ट बनाया होगा, आपने मीन मीडियन मोड को पूरा सॉल्व करके दिखाया होगा। ये सब जो है टेबल्स को प्रेजेंट किया होगा। तो ये सब क्या है, ओगिफ से प्रेजेंटेशन किया होगा। ये सब होता है प्रेजेंट करना। ग्राफ में आपने प्रेजेंट किया होगा तो डाटा का प्रेजेंटेशन। एनालिसिस करना मतलब कि उसकी उसकी जांच करना, उसको एनालाइज करना कि किस तरह का है ये डाटा, ठीक है, किस सेंस में है ये डाटा, उसका आंसर को एनालाइज करना, उसके प्रेजेंटेशन को एनालाइज करना। जैसे सॉल्व करने के बाद आप एक आंसर को एनालाइज करते हो ना कि हाँ ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, क्या है ये, किस तरह का है। तो उस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिलेशन को, रिलेशन करना, सॉरी एनालाइज करते हैं हम, उसका रिलेशन एग्जिस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, मतलब कि रिजल्ट आउट करना, हम डिक्लेरेशन करते हैं फाइनल, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। सो ये पूरा जो प्रोसेस है ये सिंगुलर सेंस में हम देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस, उसका मतलब आपको समझ में आया। डेफिनेशन आपने देखी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा की स्टडी ही करता है।
अगर कोई डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होगी तो उसकी स्टडी नहीं करेगा स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे वही डाटास की वैल्यू होती है, उसी की स्टडी होती है जो न्यूमेरिकल डाटास होते हैं, जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, न्यूमरिक फॉर्म में होते हैं, उनकी स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स, और उन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ प्रूअर सेंस। प्रूअर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या है? Yes, dear student, as you can see in the plural sense, the statistics is defined by different author. अलग अलग author ने statistics को plural sense में define किया है। Statistics are numerical statement of fact in any department of inquiry placed in relation to each other. Okay, मैं इसको explain करूँगी आपको। By statistics, we means quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. ओके, तो इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स, पहले ही डेफिनेशन में हमें क्या बोला है? स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्सप्रेस्ड होता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। अगर कोई टर्म्स, कोई डाटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होगा तो वो स्टैटिस्टिक्स के स्टडी के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो होता है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डाटा होती है, जो कि क्वांटिटेटिव डाटा होती है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, गुणवत्ता। गुणवत्ता के बेसिस पे नहीं जज होता है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, संख्या, कितनी संख्या, गुणवत्ता नहीं, यहाँ कितनी संख्या है, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उसकी बात की जाएगी। तो लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए, यहाँ नंबर्स में होना चाहिए एक्सप्रेस्ड, ना कि गुणवत्ता। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये सब क्या होता है? क्वालिटी है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे 100, 200, 300, तो ये क्या है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, ये क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव डाटास को एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि अलग अलग कॉजेस से अफेक्ट होते हैं। कॉज मतलब कारणों से अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग यहाँ कारणों से तो एक्सप्रेस्ड होते ही हैं, प्लस इन डाटास को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, प्लेस इन अ रिलेशन टू ईच अदर। यहाँ पे क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, एनालाइज करके कंपैरिजन किया जाता है, तब जाके रिजल्ट आउट दिया जाता है। ओके, चलिए अब इसको हम समझते हैं। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। इस पूरे जो डेफिनेशन है उसका हम सेंस समझते हैं इनके कुछ फीचर्स के द्वारा। मतलब कि अब हम बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने बात की डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? अब हम देखेंगे इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डाटा की। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेफिनेशन आपको पूछ लेगा स्टैटिस्टिक्स की, सिंगुलर फॉर्म की डेफिनेशन बताइए और उसको पूरा एक्सप्रेस करिए। तो मैंने जो आपको बताया था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ों को आपको समझना है। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं उसी तरह से। और यहाँ पे जैसे कि अगर कभी पूछेगा प्लूरल सेंस में इसकी डिफ़ाइन करिए और प्लस इसके फीचर्स बताइए, तो आपको डेफिनेशन के साथ ये फीचर्स भी लिखने होंगे। फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे देखिए फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस के हिसाब से ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट है, मतलब कि ढेर सारा फैक्ट्स का एग्रीगेट नंबर्स में है, ठीक है, सिंगल नंबर नहीं होता है इसमें। इसमें बहुत सारी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस, जैसे मैंने बताया था ना, एग्रीगेट्स लार्ज की स्टडी कर रहा है, छोटी चीज़ों की स्टडी करता है, लार्ज डाटा की स्टडी करता है। माइक्रो में हमने देखा था कि वो छोटी चीज़ों की स्टडी कर रहा है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? लार्ज स्टडी करता है। अ सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। सिंगल नंबर से स्टैटिस्टिक्स कंस्टिट्यूट नहीं होगा, इसके लिए क्या चाहिए? लार्ज नंबर, एग्रीगेट नंबर। एग्रीगेट का मतलब होता है लार्ज फैक्ट्स। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि नंबर्स में होगा। क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट नहीं चलेगा इसमें, जैसे कि स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ये सब नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा? क्वांटिटेटिव, मतलब कि संख्याओं की बात होगी,
1 2 3 इस तरह से, ठीक है। अगर आपको किसी की रैंक भी देनी है तो नंबर्स में, ये नहीं कि वेरी गुड, वेरी वेल, एक्सीलेंट, इस तरह से नहीं, नंबर्स में होगा। तो यहाँ न्यूमेरिकल एक्सप्रेस डाटास को ये कंसीडर करता है। मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेस मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल फैक्टर से कोई भी कॉज इफेक्ट नहीं करता, यहाँ पे मल्टीपल कॉजेस से इन्फ्लुएंस होता है कोई भी फैक्टर, ठीक है। मल्टीपल कॉजेस से ही कोई भी फैक्टर इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि 30% प्राइस राइज हो गया, ठीक है। 30% चीज़ों का, वस्तुओं का प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया। वो किस वजह से राइज हुआ, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई में कमी, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गया, शॉर्टेज ऑफ पावर, पावर की शॉर्टेज के कारण, ठीक है। तो राइज इन टैक्सेस, टैक्स बढ़ गया, कर बढ़ गया इस वजह से। तो मतलब कि 30% जो है इंक्रीज़ हुआ प्राइस, उसके कॉजेज़ बहुत सारे हैं। रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज, मतलब कि कोई भी अगर कॉज हुआ, किसी भी तरह का कॉज, तो उसके कारण कितने हैं। कोई भी कोई भी अगर कुछ भी होता है तो उसके कारण बहुत ढेर सारे होने चाहिए, सिंगल कारण नहीं होना चाहिए। समझ में आया। एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप इससे भी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 30% प्राइस बढ़ गया, दाम बढ़ गया, उसका कॉजेज़ क्या है, डिमांड सप्लाई डिक्रीज़ हो गई, डिमांड इंक्रीज़ हो गई, और राइज इन टैक्सेस, टैक्स राइज हो गए, पावर की शॉर्टेज हो गई। तो ये सब अलग अलग कारण है जिसकी वजह से 30% प्राइस बढ़ गया। नेक्स्ट इसके देखते हैं फीचर। देन नेक्स्ट देखिए रीजनेबल एक्यूरेसी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब कि इसकी एक्यूरेट होना चाहिए, हाई डिग्री एक्यूरेट होना चाहिए। जो डाटाज आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए। करेक्ट डाटाज को आप कलेक्ट करेंगे, डाटाज को इकट्ठा करने का जो काम होगा है वो एक्यूरेसी से होना चाहिए, बिल्कुल 100% सही डाटाज इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपैरेबल। ये जो डाटाज जो भी हम लोग कलेक्ट करेंगे वो सारे डाटाज कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड, आपस में रिलेटेड। म्यूचुअली रिलेटेड मतलब आप आपस में ही रिलेटेड होना चाहिए, और कंपैरिजन उनका इजीली हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि राम की एज 40 है, मोहन इज़ मोहन जो है वो 5 फीट टॉल है, सोहन जो है वो 60 kgs का उसका वेट है। तो ये जो है इसमें कंपैरिजन कैसे होगा, एक तो एज बता रहा है, एक बता रहा है उसकी टॉलनेस बता रहा है, एक बता रहा है उसका वेट। तो ये तीनों डाटाज जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं, मतलब डाटाज जो होने चाहिए वो म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए ताकि कंपैरिजन कर लें। अगर आपको एज ही नापनी है तो तीनों की एज होनी चाहिए, जैसे राम की 40, तो शाम की जो है वो होनी चाहिए 50, या किसी की 60 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एज को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो फैक्ट जो डाटाज ही हैं वही अलग अलग टर्म्स में है, एक की एज बताइए, एक की टॉलनेस बताइए, एक की वेट बताइए, तो ये नहीं हो सकता स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि पहले से ही प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, प्री का मतलब होता है पहले से, एडवांस में। जैसे कि कोई भी हमारा, हम लोग बिजनेसमैन हैं, अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो वो क्या करता है, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर लेता है, वो पहले से ही ऑब्जेक्टिव अपने एक उद्देश्य बना लेता है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपका भी कोई टारगेट बना लेते हैं ना कि हमें इतने मार्क्स स्कोर करने ही हैं, इस एग्ज़ाम में ऐसे पढ़ाई करनी है। तो वो प्री डिटरमाइन होता है, आपका पहले से ही तय उद्देश्य, उसको कहते हैं प्री डिटरमाइन उद्देश्य। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेशन का, कलेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कैसा होगा, पहले से ही प्री डिटरमाइन। मतलब कि आप जब भी, जैसे अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल आपको बताया था कि हमें एज का कंपैरिजन करना है लोगों की, कि
अलग अलग इतनी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा एजेड ग्रुप कौन सा है या सबसे यंग ग्रुप कौन सा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे सारे लोगों का डाटास का कलेक्शन करेंगे, प्लस उनकी एज भी लिखेंगे, तब तो हमें पता चलेगा ना। पर हम जो कलेक्शन कर रहे हैं उससे पहले ही हमारा ऑब्जेक्टिव निश्चित होगा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्री डिटरमाइन, पहले से ही निश्चित। अब इस ऑब्जेक्टिव में हम पहले से ही तय कर लेंगे कि हमें एज ग्रुप फाइंड आउट करना है कि सबसे एजड ग्रुप कौन सा है या सबसे यंगस्टर ग्रुप कौन सा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम पहले ही प्लान बना लिया कि हमें ये फाइंड आउट करना है, इस डाटा कलेक्शन जो करेंगे वो इस आधार पे करेंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसका उद्देश्य पहले से हमने प्री डिटरमाइन किया है। तो यहाँ पे आपका जो डाटास का कलेक्शन होगा उसका जो बेस होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। जैसे एग्ज़ाम से पहले आप लोगों ने सोचा है कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, हमें ऐसी पढ़ाई करनी है। प्लानिंग क्यों करेंगे आप, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए ना। तो आपका उद्देश्य क्या है, पहले से सेट है कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, तभी आपने प्लान किया ना कि हमें ऐसी पढ़ाई करनी है, दिन में इतने बजे तक पढ़नी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका पहले से प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव है कि आपको अच्छा स्कोर होना है। नेक्स्ट, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। यस डियर स्टूडेंट, इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब, एस्टिमेटेड का मतलब होता है सपोज। जैसे कि मैथ्स में आपने बहुत बार सॉल्व किया है कि एक्स की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज ए, इस तरह से करते हैं ना, सपोज करना, लेट कर लेना, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए। तो सपोज जो ये एस्टिमेटेड जो होता है उसका मतलब होता है अनुमान कर लगाना, सपोज कर लेना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे डाटास को जब कलेक्ट करेंगे तो उसको सपोज मान के चलेंगे। इन्यूमरेटेड का मतलब होता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होता है, ये किसी एक प्रॉपर सर्च के थ्रू किया जाता है, एक रिसर्च के थ्रू ये इन्यूमरेट किया जाता है। इसमें इन्यूमरेटर को हायर किया जाता है और उससे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के सर्च करवाई जाती है और उससे डाटा को कलेक्ट किया जाता है। लास्ट इज कलेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यहाँ पे जो भी डाटास को कलेक्ट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, सिस्टमैटिक मैनर्स में कलेक्ट किया जाएगा, उसको एक प्री अरेंज मैनर्स में कलेक्ट किया जाएगा। डाटास को जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा था ना, इसकी उसी का मतलब होता है अरेंजमेंट सिस्टमैटिक मैनर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट। सो ये हमने बात की कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म में कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म में कैसी होती है। हमने सिंगुलर फॉर्म भी देखा और प्लूरल फॉर्म भी देखा कि उसमें स्टैटिस्टिक्स किस तरह से होती है। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे का इस चैप्टर में और क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन सा पोर्शन बचा हुआ है। तब तक के लिए आप ये पूरा जितना भी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए हैं इस लेक्चर में, उसको अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और आपको इसको समझ में आना चाहिए, तभी आएगा जब आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वॉच करेंगे, इसके नोट्स खुद से प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट ऑल्सो। एंड सब्सक्राइब करने से आपको मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम, और आप मेरे चैनल को हमेशा वॉच कर सकें, मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियोस आप उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।